Good morning, student. Today we are going to learn subject maths, standard 7, chapter number 13, exponents and powers. In last video we have already learned up to exercise 13.1. Here today we are going to learn new points and new exercise 13.2 and 13.3. In this video we will learn these two exercise. Okay, so let's we start from that. First we understand rules. Now laws of exponent. What is the law of exponent? So see here, for any non-zeroed integer a raised to m multiply a raised to n. So what is that law? A raised to m plus n. If multiplication is there, at that time we have to do addition. Where m and n are whole numbers. Here m and n are whole numbers. For any non-zero integer a raised to m divide a raised to n. If division is there, so what we have to do? A raised to m minus n. If division is there, at the time you have to जो एक्सपोनेंट है उसका पावर है उसका हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा. ओके, वेयर m and r whole numbers and m is greater than n. For any non-zero integer a raised to m raised to n. So what we have to do? A raised to mn. Okay, so where m and n are whole numbers. For any non-zero integer a raised to m multiply b raised to m. So what we do? ab raised to m, where m is a whole number. Now here solve this example. How we can solve this example? See here, first simplify and write in exponential form. यहाँ सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है. हाउ वी कैन राइट? तो उसका फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन करता हूँ. देखो 2 raised to 5 मल्टीप्लाई 2 raised to 3. तो यहाँ पर हमें वो रूल्स याद रखना होगा. a raised to m मल्टीप्लाई a raised to n. ये रूल्स हमें फॉलो करना है. तो देखो a raised to m मल्टीप्लाई a raised to n. तो उसका रूल्स क्या है? a raised to m plus n. On the basis of this rule we have to do 2 raised to 5 and प्लस क्या करना होगा? प्लस 2 raised to 3 है तो क्या होगा? So 2 raised to 5 plus 3 how much? 8. Okay, to 2 raised to 8. This we can write. Okay, I think you understood this first example. In the same way others also you have to do this way. देखो नेक्स्ट रूल डिवाइड वाला कैसे करना है? आई विल एक्सप्लेन इट. See here, simplify and write in exponential form. As for example, 11 raised to 6 divide 11 raised to 2. How we can do this here? यहाँ पर दिया है 6 minus 2 किया तो क्या आया? 4. तो 11 raised to 4 आया. उसका मैं फर्स्ट वन समझाऊँ आपको. 2 raised to 9 divide 2 raised to 3. So 2 raised to 9 divide 2 raised to 3. यहाँ पर वो डिवीज़न वाला रूल्स फॉलो करना होगा हमें. देखो ऐसा a raised to m divide a raised to n, यानी कि a raised to m minus n, यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा? 2 raised to 9 minus 3. 2 raised to 9 minus 3. So what is answer? 9 minus 3 6. Okay, 2 raised to 6. This way you can do. Okay, I think you understood this. Okay, the next point.
नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं यहाँ पर। देखो सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर देखो 6⁴ उसका हमें कैसे करना है। देखो यहाँ पर फॉर सिंप्लीफाइंग द गिवन एक्सप्रेशन वी यूज द प्रॉपर्टी, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी a⁴m⁴n। तो a⁴m इंटू n यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, m इंटू n यानी कि मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करना। तो 6⁻² मल्टीप्लाई 4, तो 2 4 जा 8। तो व्हाट इज आंसर 6⁸8। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m। सो ab⁻m यानी कि ab का मल्टीप्लाई करके m करना है। देखो यहाँ पर 4⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻3, तो उसका हमें कैसे करना है। देखो 4an 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, 4 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो 4 2 जा 8, 8⁻3। दिस वे यू हैव टू डू। देखो अनदर एग्जाम्पल, पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग a⁻m डिवाइड b⁻m। तो यानी a डिवाइड बाई b⁻m वैसे करना है। देखो 4/3 ऐसा करना है। ओके, 4⁵ डिवाइड बाई 3/5, तो 4/3⁵5 वैसे आपको बनाना है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन है 3⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻8। यहाँ पर हमें ये रूल्स याद कर रखना है, ये रूल्स फॉलो करना है। यानी कि क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसका जो पावर है, पावर का हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 3⁻2 + 4 + 8 यानी कि 4 + 2 6, 6 + 8 कितना होगा 14। तो उसका आंसर है 3⁻14। इन द सेम वे अदर सम यू हैव टू डू योर सेल्फ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉरी, जो डिवाइड वाला है, डिवाइड वाले में क्या करना होगा, आपको माइनस करना, 15 - 10 करना। तो 5 मिलेगा, तो 6⁻5 आंसर मिलेगा। आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ सिंप्लीफाई करना है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो देखो ये उसका फर्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम उसका। 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 3⁻32 3 मल्टीप्लाई 32। तो यहाँ पर उसका सिंप्लीफिकेशन किया है। देखो 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻4 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 32। 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻4 मल्टीप्लाई 2⁻2 3 मल्टीप्लाई 32 किसका होगा, 2 को 5 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2⁻5 होगा। ओके, सो यहाँ पर 2⁻5 ये साइड ला देते हैं। देखो उसका क्या करते हैं हम, प्लस करते। देखो 2⁻3 + 4 + 2 करना। ओके, देखो यहाँ पर 2⁻5 लिया और मल्टीप्लाई 3 और 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻4। देखो मल्टीप्लाई है तो उसका भी हमें क्या करना होगा, और यहाँ पर डिवाइड है 2⁻5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2⁻5 माइनस 5 करना होगा मल्टीप्लाई 3⁻4 और यहाँ कर 1 है, क्या करना होगा, -1 करना होगा। ओके, तो 2⁻5 - 5 तो क्या होगा 0, 2 का 0 पावर मल्टीप्लाई 3 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 3⁻3 इज इक्वल टू यहाँ 2 का रेस्ट पावर कुछ नहीं है तो क्या समझना 1 और मल्टीप्लाई 3⁻3 करना। ओके, तो 1 3 जा 3 करना, तो यानी कि 3⁻3 इट इज़ योर आंसर। ओके, थर्ड नंबर का देखते हैं। 25⁴ डिवाइड 5⁻3। यहाँ पर क्या करना है, उसका किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। ओके, 5² डिवाइड 5:3 यानी कि ये दोनों का क्या करना होगा, 2 × 4 करना मल्टीप्लाई, तो 5⁸8 डिवाइड 5⁻3 यानी कि डिवाइड वाला आया तो क्या करना होगा 8 - 3 करना, तो 5⁻5। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, से ट्रू और
false. Justify your answer. 10 multiply 10 raised to 11 is equal to 10 raised to 100 raised to 11. तो हमें वेरीफाई करना है ये सही है ये गलत है, तो हमें वेरीफाई कर दे। देखो 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 11 इज इक्वल टू 100 रेज टू 11। देखो 10 यहाँ पर है, 10 का 11 टाइम करेंगे तो देखो 10 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 11, तो 1 प्लस 11 करना तो कितना होगा 10 रेज टू 12। एंड RHS क्या है 100 रेज टू 11। ओके, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर है, 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, और इसका रेज टू 11 करते हैं, 10 इंटू 11 करेंगे तो क्या होगा 22। तो 10 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 10 रेज टू 22। तो LHS जितना है उतना RHS नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है गलत है यानी कि फॉल्स है। ओके, और दूसरा देखते हैं 2 रेज टू 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू 2 यानी कि 3 टाइम है 2 इंटू 2 यानी कि 8 हुआ, और 5 2 टाइम है 5 इंटू 5 तो 25, तो 8 इज स्मॉलर देन 25, सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें उसका एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, बाद में उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ 108 एंड 192 का फैक्टराइज किया है। देखो उसका किया है तो 254 जा किया, 227 जा एंड 3 से 3 9 जा 3 जा 3। ओके, उसका हमें और 192 का क्या है 96 2 जा किया, 48 2 जा किया, 24 2 जा किया, 12 2 जा किया, 6 2 जा एंड 3 2 जा एंड 3 1 जा। और उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखो 108 का लिखा, देखो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो 92 का 192 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अदर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। ओके, तो उसका हमें क्या होगा देखो 2 कितनी टाइम है एंड 3 कितनी टाइम है हमें काउंट करना होगा। तो 2 है यहाँ पर 8 टाइम एंड 3 है 4 टाइम। ओके, तो उसका हमें कैसे लिखेंगे 2 रेज टू 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 4। दिस वे यू हैव टू डू अदर सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। देखो 2 रेज टू 5 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू 3 8 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 7। उसका जो 5 इंटू 2 कर देना, पहले 5 इंटू 2 यानी कि 5 इंटू 2 कर देना है और 7 रेज टू 3। क्या डाउन साइड पे 8 है, 8 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब है। ओके, तो 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 3 करना। ओके, सो 5 2 सा क्या होगा 10, तो 2 रेज टू 10 मल्टीप्लाई 7 रेज टू 3, और यहाँ पर 3 3 जा 9 2 रेज टू 9 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब 2 रेज टू 10 डिवाइड 2 रेज टू 9 करना और मल्टीप्लाई क्या करना है 7 रेज टू 3 एंड 7 के पावर 7 के ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या लिखना 1। और अब ये डिवाइड का पहले सॉल्यूशन करते हैं। ये डिवाइड वाला है तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 रहेगा। ओके, और 7 रेज टू 3 इसमें से 1 निकालो तो 2 रहेगा। उसका क्या होगा 2 रेज टू 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू 2। अब ये मल्टीप्लिकेशन आया तो क्या करना है उसका तो उसका पावर क्या है 2 का पावर 1 है तो 2 का 2 ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49। ओके, तो 49 मल्टीप्लाई 2 करना तो आंसर आएगा 98। ओके, दिस वे यू हैव टू डू अदर सम। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस यूट्यूब वीडियो एक्सरसाइज 13.2 का। अब हमें न्यू पॉइंट समझते हैं। नाउ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लिखना है वे आपको समझाऊँ मैं। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम वी हैव लर्न हाउ टू राइट अ नंबर इन इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। हम सब पढ़ चुके हैं एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखना है। ओके, देखो यहाँ पर
2,05,987 लिया है। ओके, तो हमें एक्सपांडेड फॉर्म ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1,00,000 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1,000 प्लस 9 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 then plus 7 multiply 1. This way we have to write expanded form. Okay, 2 मल्टीप्लाई उसका 10 का कितने से है, 10 का 10 रेज टू 5, 0 कितने हैं 5 तो 0, ओके, तो 10 रेज टू 5, ओके, प्लस 0 तो 10 को कितने से है 4 0 है, इसलिए ऐसा लिखना। 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू कितने 0 है 3, तो ऊपर 3 लिखा, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर 100 के बाद 1 के बाद 2 0 तो 10 रेज टू, प्लस 8 multiply 10 1 0 is there so 1 plus 7 10 but nothing 0 so we put only 0. Okay, so this way you have to at expanded form. So the number is now expressed in the exponent form using powers of 10. You have to using power of 10. The exponents of 10 start from maximum value of 5 and go on decreasing by 1 at a step from the left to the right up to 0. Expressing large number in the standard form. Large number है उसको मैं standard form में कैसे लिखेंगे? It is not convenient to deal with very large number. Example, number of stars in our galaxy is this type of, okay. So we can write, how we can write? We cannot express this in standard form, okay. Such large number can be expressed in a standard form to make it convenient to use standard form. Any number can be expressed as a decimal number between 1.0 and 10.0, including 1.0 multiplied by a power of 10. Such a form of a number is called its standard form. Let us now write the mass of the earth in standard form. Standard form में कैसे लिखेंगे? देखो, mass of the earth, देखो यहाँ पर 5 9 7 6, then how many 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ओके, देखो 5.97 बाद में कितने ज़ीरो लगाए हैं, देखो काउंट करना है, यहाँ मल्टीप्लाई 10 रेज टू 24 जीरो है, यानी 24 रेज लगाया। ओके, ओके, चलो अब एग्जांपल समझते हैं। ओके, यहाँ पर 172 है, एक्सप्रेस बाय एक्सप्रेसिंग, एक्सपांड बाय एक्सप्रेसिंग पावर ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 172 है, तो 172 का 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 देन 2 मल्टीप्लाई 1, उसका हमें पावर कैसे लिखेंगे? एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है और उसका पावर बनाना है पावर फॉर्म में। तो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 0, यानी कि 10 रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. In the same way others also do this way. Now we see exercise 11.3. तो 11.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। में एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है पहले, बाद में उसका पावर फॉर्म में करना। 2,79,404, तो 2 को पहले 1 लाख से मल्टीप्लाई करना, प्लस 7 को 10,000 से, प्लस 9 को 1000 से, प्लस 4 को 100 से, प्लस 0 को 10 से, प्लस 4 को 1 से। ओके, देन 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 5 की जितने जीरो है इतने 10 के ऊपर लिखना है हमें। 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 4, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 3, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 1, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 0. दिस वे यू हैव टू राइट. ओके, तो नेक्स्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम. फाइंड द नंबर फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपांडेड फॉर्म. देखो 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 0. हमें उसका एक्सपांडेड फॉर्म, उसका नंबर फाइंड आउट करना है. एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, उसका हमें नंबर फाइंड आउट करना है. यानी कि 8 को कितने से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 10 रेज टू 4 है, यानी कि 10,000 से, प्लस 6 को 1000 से, प्लस 0 को 100 से, प्लस 4 को 10 से, प्लस 5 को 1 से, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 10,000 यानी कि 80,000.
6 यानी मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 6000, 0 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 40, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 5। तो उसका नंबर होगा 86,045। दिस वे यू कैन राइट। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक ये नंबर है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या नंबर है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 करोड़ है। यहाँ पर क्या है? 5 करोड़ है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1 करोड़। 1 करोड़ यानी कि 1 के बाद कितने जीरो है? इतने अप साइड ऊपर नंबर लिखना है आपको। 10⁻7, 5 मल्टीप्लाई 10⁻7। उसका बस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5 करोड़ इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻7। इन द सेम वे अदर सम यू डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। तो 384 मिलियन। ओके, तो उसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो 3.84, देन आफ्टर ये जितने जीरो है मल्टीप्लाई बाई 10⁸8 किया है। ओके, 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸8। तो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸8 मीटर। ओके, in the same way others also you have to do. Okay, I think you understood this both exercise through YouTube video. So you have to write both exercise in your notebook 13.2 and 13.3. Okay, thank you.